Uh, Let us start with the sum now. Mrs. Everfresh Limited was formed to take over running business with effect from 1st April 2000, 1st April 2016. So for us this date is important. जब बिजनेस स्टार्ट हुआ हमें 3 dates चाहिए, तो we got the first date, year beginning, and then the company was incorporated on 1st October. So the second date also we got it. This date is also important because incorporate, we want beginning date, incorporation date, and we require the closing date. Closing date is also given in the question, 31st March. So 1st April is the opening date, 1st October is the closing date, and 31st March is the year end date. Now some expenses and incomes are given. Salary, nothing told, time ratio. Printing stationery, time ratio. Traveling expense, sales ratio, if nothing told. Advertisement, sales ratio. Trade expenses is time ratio. And then we have rent, it will be time ratio, electricity, time, printing, preliminary expense. Yes, preliminary expenses, what you say, it is company formation expense. So company formation expense will come in the company post period. And after that, what do you have? After that, we have bad debts. Bad debts is sales ratio. Then we have uh, commission on to selling agent. So commission to selling is sales ratio. Selling agents ka commission will be sales ratio. Audit fees if nothing told, time ratio. Debentures are issued by the company, so debenture interest will be post period. Interest paid to vendor, इंटरेस्ट को कब पे, एक्चुअली पीसी कब पे करना चाहिए था, जिस दिन बिजनेस परचेस हुआ 1st April को. But because the vendors got their money late, got their purchase consideration late, interest has been paid to the vendors. For the delay in the payment of purchase consideration, interest has been paid. So वो 21,000 है, वो कब पे हुआ उसके हिसाब से हम मंथ को काउंट करके रेशो बनाएंगे. नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स रेशो, डेप्रिसिएशन, टाइम रेशो. ग्रॉस प्रॉफिट is, gross profit is nothing told, sales ratio. And after this, let us come to the adjustment. Let us come to the adjustment. Total sales during the year, which amounted to rupees 96 lakh, arose evenly up to the date of certificate of incorporation, whereafter they spurted to record a increase of 2/3 during the rest of the year. मतलब ऐसा बोलते हैं कि फुल ईयर का सेल्स था 96 lakhs. हमारे लिए सेल्स इंपॉर्टेंट. अगर sales they give pre-incorporation, post-incorporation period, then we divide it. But they have only given the total sales 96 lakh, and they say that ये जो sales है up to the date of incorporation, that is 1st October तक ये same था. एवरी मंथ इनकॉर्पोरेशन तक जो सेल्स है वो वॉज इवन. इवन मतलब सेम था. एवरी मंथ द सेल्स वेर सेम अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. बट उसके बाद व्हाट हैपेंड, उसके बाद देयर वाज increase of 2/3. उसके बाद thereafter they spurted to increase, there was an increase of 2/3 during the rest of the year. मतलब earlier it was सेम, इनकॉर्पोरेशन तक एवरी मंथ इट वाज सेम. उसके बाद सेल्स बढ़ गया, जितना भी है उसका 2/3, 2/3 इट टाइम्स इट इंक्रीज.
नाउ ये हम लोग एडजस्टमेंट जब हम सेल्स रेशो निकालेंगे तब मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगी. रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड एट 1,20,000 पर एनम अप टू सितंबर. सितंबर तक पर एनम कितना पे करते थे हम? 1,20,000. टेल मी, 1,20,000 अगर ईयरली रेंट है तो मंथली रेंट कितना रहेगा? 1,20,000 डिवाइड बाई 12 करो. 1,20,000 इज द ईयरली रेंट पर एनम रेंट. तो मंथली रेंट कितना होगा? 1,20,000 डिवाइड बाई 12, इट विल बी 10,000. करेक्ट. And thereafter there was an increase by 24,000. Thereafter there was an increase by 24,000 per annum. मतलब 1,20,000 प्लस 24,000 पूरे साल में. पहले 1,20,000 था, उसके बाद इंक्रीज बाय 24,000. मतलब बाद में सितंबर के बाद अक्टूबर से देयर वाज इंक्रीज इन द रेंट बाय 24,000. कैन एनीवन टेल मी फिर ईयरली रेंट कितना हुआ होगा? 1,20,000 प्लस 24,000, दैट इज सितंबर के बाद रेंट बिकम 1,44,000 पर एनम. तो कैन यू टेल मी पर मंथ रेंट कितना है? हाउ मच विल बी पर मंथ रेंट? if 1,44,000 is the per annum yearly rent, so उसको divide by 12 करो. 1,44,000 डिवाइड बाई 12 करो. एग्जैक्टली करेक्ट, इट वॉज 12,000. मतलब सितंबर तक 10,000 पर मंथ रेंट पे किया और अक्टूबर से 12,000 पर मंथ रेंट पे किया. इसके बाद जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹24,000 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन, टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन. मतलब टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 84,000, टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 84,000. एंड 84,000 में रिलेटेड टू 84,000 में रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू सेल्स इज 24,000. बाकी का ट्रैवलिंग एक्सपेंस फिक्स रहेगा. फिक्स मतलब क्या? मीन्स एम्प्लॉइज को ऑफिस से घर ट्रैवलिंग के लिए हर एवरी मंथ फिक्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिलता है. तो 84,000 माइनस 24,000 इज 60,000 will be divided as per time ratio and 24,000 will be divided as per sales ratio. Depreciation include ₹3,000 for assets acquired in the post incorporation period. Total depreciation is how much? Can you see? Total depreciation is 48,000. 48,000 में 3,000 पोस्ट में आएगा, बाकी का 45,000 टाइम रेशो में डिवाइड होगा. मतलब 3,000 depreciation include 3,000 for assets acquired in the post period. पोस्ट पीरियड में जो असेट खरीदा उसका depreciation 3,000 है. एंड रिमेनिंग depreciation 48,000 minus 3,000, that is 45,000, belong to the full year. फिर depreciation मतलब टाइम रेशो में डिवाइड होता है. तो 45,000 रिमेनिंग 45,000 will be divided for the full year. Then we have purchase. Then we have purchase consideration was discharged by the company on 31st October 2016 by issuing equity shares of ₹10 each. आपने कन्वर्जन में देखा था पिछले सेमेस्टर में कि परचेज कंसिडरेशन कैश में ही पे करो, जरूरी नहीं है. वी कैन गिव इट बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स अपार्ट फ्रॉम कैश. तो ये लोग ने पीसी कैसे पे किया? इक्विटी शेयर्स दे के. लेकिन कब वो क्या दे के पे किया इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज द डेट व्हेन द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल्ड. परचेज कंसिडरेशन 31 अक्टूबर को पे किया, बट कब पे करना चाहिए था? 1 अप्रैल को.
they had to pay the purchase consideration on 1st April, but they paid on 31st October. मतलब जितना डिले किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है. इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 21,000. दैट हैज टू बी डिवाइडेड नाउ. अप्रैल से अक्टूबर तक मंथ लिखेंगे और प्री में कितना महीना है, पोस्ट में कितना महीना, अकॉर्डिंगली वी विल डिवाइड द इंटरेस्ट टू वेंडर. Next one, salaries include rupees 40,000 paid to a director. तो director is only in the company. तो डायरेक्टर को जो सैलरी दे रहे वो पोस्ट पीरियड में आएगा. उसके बाद देर वे 3 एम्प्लॉइज अप टू 30 सितंबर, आफ्टर विच इट वाज इंक्रीज बाय 6 एम्प्लॉय. मतलब पहले सिर्फ 3 एम्प्लॉइज थे 30 सितंबर के तक. उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉइज है वो 6 से और बढ़ गए. Earlier there was 6, then it increased by 6 employee. मतलब 3 plus 6 is 9. प्री पीरियड में 3 एम्प्लॉय, पोस्ट पीरियड में 9 एम्प्लॉय. 3 plus 6 9. The rate of salary was same in all the cases. Okay, रेट उनको सेम मिल रहा है, लेकिन पहले 3 एम्प्लॉय थे, बाद में 3 से 6 और इंक्रीज हो गए. तो 3 plus 6 is equal to 9. So accordingly हम रेशो बना के we will distribute the salaries. Now you are asked to prepare the profit and loss showing distinctly the allocation of profits between pre-incorporation and post-incorporation period. So let us prepare the statement of profit and loss account. Statement of profit and loss account. Profit and loss account for year ended 31st March 2017. And name of the company लिखेंगे तो it is what, Mrs. Everfresh Limited. Everfresh Limited is the name of the company. Now what we will do, we will prepare the columns. Let us do in the vertical. Vertical क्या है, ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होता है, 2 साइड्स में लिखने का ज़रूरत नहीं होता है. तो आई प्रेफर वर्टिकल. इट इज़ अप टू यू, आपको ऐसे करना है या आपको जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे क्वेश्चन में जैसा ट्रेडिंग अकाउंट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है, आपको वही फॉर्म में करना है तो आप वो फॉर्म में भी कर सकते हो. यू कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन इन एनी फॉर्म. सोल्यूशन आप कोई भी फॉर्म में कर सकते हो. इट्स अप टू यू. I am doing it in this form because I feel ये जल्दी और इजी लगता है मुझे, क्योंकि बाकी नहीं तो वो टोटलिंग करने पे यहाँ पे तो हम डायरेक्टली टोटल करेंगे, हमें देख के भी समझ में आएगा प्रॉफिट है या लॉस. वहाँ पे तो हम एक साइड में से दूसरे साइड का माइनस करके लिखते हैं टोटल में से. सो बोथ आर गुड. यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या डेबिट क्रेडिट दिखा के भी कर सकते हो. ये करने से पहले नाउ आई विल गो टू द वर्किंग नोट. एंड वर्किंग नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे हमें 2 रेशो जब तक नहीं मिलेगा हम ये नहीं, हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते. सबसे पहले वी रिक्वायर टाइम रेशो. टाइम रेशो में हमें 3 डेट चाहिए. व्हाट आर द 3 डेट्स? ओपनिंग डेट, incorporation date, and lastly we want the year end date. So let us go to the question and check. 1st April is the beginning date, 1st October is the incorporation date, and 31st March is the closing date. हाईलाइट करके रखा है पहले से. So यहाँ पे we will write, let us first remove this gap which is coming. So 1st April 2016. Then we have 1st October 2016. Then we have year end 31st
March 2017. So what we will do, we will start counting the months April to October. It is 6 months, correct? April, May, June, July, August, September. So it becomes 6, and post period may be October से March, it is 6. So ratio is 1:1. Correct. Time ratio is 1:1, equal. Now second we will do sales ratio. सेल्स रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जरा अलग तरीके से दिया है. तो पहले तो हम हमारा कैलेंडर बना लेते हैं. लेट अस प्रिपेयर अवर कैलेंडर. सो आई वांट मोर columns. So here I will write April, May, June, July, August, September, October, November, December, sorry, December, Jan, Feb, एंड साल खत्म हो रहा है मार्च में. तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट सेल्स जो था इट वाज 9, टोटल सेल्स 96 लाख अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन तक सेल्स इज सेम, उसके बाद 2/3 इंक्रीज हुआ. फॉर एग्जाम्पल इट इज, लेट अस अज्यूम पहले सेल वाज 1, बाद में सेल कितना हो गया प्री पीरियड में. लेट अस अज्यूम प्री पीरियड में सेल वाज 1, बिफोर इनकॉर्पोरेशन सेल वाज 1, बाद में पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सेल जो है 1 प्लस 1 का, इट इज 1 का 2/3 इंक्रीज हुआ. 1 का 2 डिवाइड बाई 3 मीन्स ये कितना होता है, 1 का 2/3 इज हाउ मच, 1 का 2 डिवाइड बाई 3 इज हाउ मच, 66.67. तो सेल हो जाते हैं 1 प्लस 6, 1 प्लस 6, 7. इट बिकम्स 1 प्लस 6, 7. तो पहले 1, फिर 1.67. डेसिमल में फिर हम रेशो कैसे मिलेगा हमें, अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो हमें रेशो का प्रॉब्लम हो जाएगा. तो हम लोग प्री पीरियड में कोई ऐसा मंथ लेते हैं जो कि डिनोमिनेटर का अमाउंट 3 के टेबल में आता हो. मतलब हम यहाँ पे कुछ ऐसे प्री पीरियड में हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डिनोमिनेटर के टेबल में आता हो. डिनोमिनेटर मतलब क्या, 2/3, 2 डिवाइड बाई 3. तो 2 इज द न्यूमरेटर एंड 3 इज द डिनोमिनेटर. 3 के टेबल में 3 1s are 3, तो 3 कम्स. आप 3, 6, 9, 12 ऐसा कोई भी नंबर लोगे ना तो आपको डेसिमल नहीं मिलेगा, आपको बराबर करेक्ट प्रॉपर आंसर आएगा. तो इसलिए मैंने तो सबसे छोटा नंबर ले लिया, दैट इज 1 नहीं ले सकते. 1 लेंगे, 1 3 के टेबल में नहीं आता, और 1 लेते हैं तो हमें डेसिमल में आंसर्स आते हैं. तो मैं कोई ऐसा नंबर लेने का बोल रही हूँ जो कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है 3 उसके टेबल में आता हो. तो सबसे इजी इट इज 3. सो 3 पहले प्री पीरियड में सेल्स 3 था, फिर 3 प्लस 3 का 2/3 इंक्रीज हो गया, 3 का 2/3 इंक्रीज हो गया. जरा 3 का 2/3 निकालो कैलसी में. 3 का 2 डिवाइड बाई 3 इज हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट 2. आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 आंसर. 3 का 2/3 निकालो, यू विल गेट 2. मतलब पोस्ट पीरियड में सेल 3 प्लस 2 which is equal to 5 हो गया. 3 plus 2 which is equal to 5 हो गया. प्री पीरियड में सेल था, अगर हमने माना सपोज प्री पीरियड का सेल है 3, तो पोस्ट पीरियड का सेल जो है वो 5 हो गया. पोस्ट पीरियड हमारा इनकॉर्पोरेशन कब से हुआ,
इनकॉर्पोरेशन अक्टूबर से हुआ, तो अक्टूबर से हम सेल लेंगे, कितना हो गया 3 था, तो उसका 2/3 इंक्रीज होके 5 हो गया, और प्री पीरियड में इट वाज 3, प्री पीरियड में इट वाज 3, प्री पीरियड में इट इज 3। हम 1 और 1.67 करके भी कर सकते हैं, पर फिर डेसिमल है, वी विल नॉट गेट अ प्रॉपर आंसर। सो इसलिए कोई ऐसा नंबर लो विच इज इजीली कमिंग इन द टेबल ऑफ द डिनोमिनेटर वैल्यू दैट इज 3। 3 के टेबल में अगर यहाँ पे हम 6 करेंगे ना, 6 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं। ऐसा नंबर लिखो जो 3 के टेबल में आता हो, जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसके टेबल में, तो यू विल गेट अ प्रॉपर आंसर। तो मैंने तो सबसे छोटा लिया बिकॉज कैलकुलेशन में इजी होता है। नाउ लेट अस सी, इसके बाद नाउ लेट अस सी कि कितना आ रहा है। इसके बाद नाउ लेट अस सी दैट क्या आ रहा है, प्री पीरियड में कितना आ रहा है, प्री में कितना नंबर आ रहा है, पोस्ट में कितना नंबर आ रहा है। सी हियर, प्री में कितना नंबर आ रहा है, ऐड करो 3 into 6, और पोस्ट में क्या है 5 into 6, 6 मंथ्स आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना नंबर आ रहा है 18 आ रहा है, एंड आ रहा है 30। ये दोनों एक ही टेबल में आता है, 3 के टेबल में, या दिस ऑल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ 6 3s are and 6 5s are बराबर 3:5 will be the sales ratio. 6 के टेबल में also this both the numbers come ना, 18 and 30। अब आपको 6:10 मिला तो उसको भी और छोटा कर सकते हैं, 2 के टेबल में 3s are and 5s are, so 3:5 is the ratio. Now we got the sales ratio also, we got the time ratio also. Now we can start with our question. सो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को तो सेल्स रेशो में डिवाइड करना है। सबसे पहले मैंने लिखा इनकम, इनकम में व्हाट कम्स ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 16 लाख, 16 लाख को सेल्स रेशो में डिवाइड करो 3:5, मीन्स 3/8, एंड 5/8 में डिवाइड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग 6 lakh, are we getting 6 lakh and 10 lakh। अगर ये नंबर को छोटा नहीं करते, 6:10 ही रखते, तो 16 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 16, ऐसा ही होता ना। ये नंबर देखो, ये हमने अगर 2 के टेबल में इसको कम किया होता, 18 एंड 30, 3 के टेबल में 3 6 जार 3 10 6:10 भी रेशो आते हैं, तो यहाँ पे तो हमने छोटा किया है 3:5। देखो आपको ये आंसर आ रहा है 6 लाख, यस यस सेम ही आंसर आएगा 6 लाख एंड 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट एक ही इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द ओनली इनकम, तो टोटल कितना आएगा, टोटल इनकम सेम अमाउंट आएगा 6 लाख एंड 10 लाख। इसके बाद लेस एक्सपेंसेस करेंगे, less expenses, तो expenses में let us see which is the first expense, salaries। तो salaries का भी करना पड़ेगा। salaries में सबसे पहले देखो लास्ट एंट्री इज फॉर salaries, तो salaries में 40,000 डायरेक्टर को दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डायरेक्टर का सैलरी, डायरेक्टर का सैलरी बिकॉज डायरेक्टर इज इन द पोस्ट पीरियड, तो सैलरी डायरेक्टर का तो पोस्ट में ही आना चाहिए। हाउ मच इज द अमाउंट 40,000। इसके बाद बचा हुआ सैलरी कितना रहेगा, टोटल सैलरी इज 2,40,000, तो वी विल हैव टू गो टू द एडजस्टमेंट। सैलरीज कितना अमाउंट है 2,40,000, जिसमें ₹40,000 हमने लिखा, ये किसके लिए है, इट इज डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स फीस, तो ये तो पोस्ट पीरियड में ही आएगा, वो हमने कर लिया। अभी बैलेंस सैलरी या रिमेनिंग सैलरी का क्या करना है, रिमेनिंग सैलरी इज इक्वल टू हाउ मच ₹2 lakhs, तो इसका क्या करना है, लेट अस सी।
इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोलते हैं कि देर आर लाइक देर वे 3 एम्प्लॉइज अप टू 30 सितंबर। प्री पीरियड में 3 एम्प्लॉय और पोस्ट पीरियड में कितने एम्प्लॉइज हुए, 9। 3 एम्प्लॉय एंड 9 एम्प्लॉय। तो रेट ऑफ सैलरी सबको एक जैसा ही सैलरी मिल रहा है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रा देखते हैं, ज़रा हम लोग लेट अस गो टू द वर्किंग नोट सैलरी का। तो यहाँ पे लेट अस डू योर सैलरी, और ये ऊपर वाला सेल्स का था ना, दिस वाज सेल्स। तो सैलरी, पहले कितने एम्प्लॉयज थे, 3 एम्प्लॉयज। पहले कितने, सितंबर तक 3 एम्प्लॉयज थे, उसके बाद 3 + 6, उसके बाद इट वॉज इंक्रीज बाई 6। ऐसे नहीं बोला इंक्रीज टू 6 एम्प्लॉयज, टू बोलते तो उतना हो गया, बाई मतलब इतने से बढ़ गया, इंक्रीज बाई 6 एम्प्लॉय। तो हमारे पास कितने हो गए, 3 + 6 इज हाउ मच, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9। तो अभी हम लोग लेट अस गो टू द प्री एंड पोस्ट पीरियड। प्री एंड पोस्ट पीरियड लिखते हैं। प्री पीरियड में क्या हुआ, प्री पीरियड में देर आर 6 मंथ, तो 6 × 3। पोस्ट पीरियड में देर आर 9 एम्प्लॉयज, 9 × 6, ऐसे 6 सेम जगह रखती हूँ, 6 × 9 एम्प्लॉयज। एंड प्री पीरियड में 6 × 3 एम्प्लॉयज। तो प्री का आ गया 18 एंड पोस्ट का कितना आ गया, 6 × 9 54। ये दोनों एक ही टेबल में आता है, 18 1s are, 18 3s are, 18 एंड 54 18 के टेबल में ही आता है, 18 1s are 18 एंड 18 3s are 54, करेक्ट। सो 1:3 रेशो में हमें डिवाइड करना पड़ेगा सैलरी टू रिमेनिंग स्टाफ। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज टू स्टाफ, कौन सा रेशो, नीचे ही करके बताए, यहाँ पे बताए तो प्री का सैलरी रहेगा 2 लाख इंटू 1/4। देखो क्या आंसर आ रहा है, पोस्ट का रहेगा 2 लाख इंटू 3/4, कितना आ रहा है 50,000 एंड 1,50,000, करेक्ट। 50,000 एंड 1,50,000, तो हमें दोनों मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट 3, और यहाँ पे वी विल राइट 50,000 और यहाँ पे वी विल राइट 1,50,000। नाउ वी विल गो to the next one after salary, printing and stationery, time ratio। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, व्हाट इज द अमाउंट, 24,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000। टाइम रेशो 1:1 है, टाइम रेशो इज 1:1। तो 24,000 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 12,000, 12,000। देन वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसके ऊपर 2 है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 2 पार्ट्स है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 2 चीज़ें हैं, एक तो सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, और दूसरा फिक्स्ड वाला या अदर्स। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ सेल्स प्रमोशन वाला सेल्स रेशो, फिक्स्ड वाला टाइम रेशो। तो 24,000 को 3:5 रेशो में डिवाइड करो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना सेल्स प्रमोशन के लिए है, 24,000, और टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 84,000, टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 84,000। 84,000 में 24,000 कितना आ रहा है, 9,000 एंड 15,000, वेरी गुड, 9,000 एंड 15,000। रिमेनिंग
रिमेनिंग 60,000 को टाइम रेशो में डिवाइड करो, 60,000 को टाइम रेशो में, बिकॉज टाइम रेशो इज 1:1, तो हाफ डिवाइड बाय हाफ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. यस, वेरी गुड. इसके बाद एडवर्टाइजमेंट है 80,000, इसको सेल्स रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा. एडवर्टाइजमेंट 80,000 सेल्स रेशो, 80,000 को सेल्स रेशो में डिवाइड करो, कितना आ रहा है 3:5, 3/8 एंड 5/8. सो हमें मिल गया 30,000, 50,000. वेरी गुड. इसके बाद मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस, इसको टाइम रेशो में करो. नथिंग इज टोल्ड तो टाइम रेशो. मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस 1,89,000 को डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आता है 94,500 एंड 94,500. वेरी गुड. इसके बाद रेंट, ऑफिस बिल्डिंग, रेंट के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है ना, तो वो करते हैं रेंट. पहले रेंट का अमाउंट कितना है वो भी देख लेते हैं. तो रेंट का अमाउंट कितना है, रेंट इज 1,32,000. फिर आई विल राइट हियर रेंट, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 4, 4 है 5 है, this was 4, this is 2, this is 3 and this one is 4. Rent 1,32,000. अब रेंट का एडजस्टमेंट देख लेते क्या दिया है. रेंट का एडजस्टमेंट क्या दिया है, रेंट सितंबर तक 1,20,000 पर एनम था, सितंबर तक 1,20,000 पर एनम. उसके बाद 44,000 आई मीन 24,000 बढ़ गया तो 1,44,000 हो गया. तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वी विल राइट रेंट और इधर पर एनम निकाल के रखते हैं पहले. टिल 30th सितंबर क्या है, 1,20,000 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 10,000 पर मंथ. हमें चाहिए. फिर आफ्टर वर्ड्स रेंट कितना हो गया, 1,20,000 प्लस 24,000 विच इज इक्वल टू 1,44,000 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू 12,000 पर मंथ. ये हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखा है. तो 30 सितंबर तक हम लिखेंगे 10,000, 30 सितंबर तक 10,000, 30 सितंबर तक 10,000. उसके बाद 12,000, 12,000 लास्ट में भी 12,000. ओके, अभी जरा काउंट करो. तो फ्री पीरियड में 10,000 इंटू 6 मंथ है ना, दिस बिकम 60,000. और पोस्ट पीरियड में 12,000 इंटू 6 विच बिकम्स 72,000. तो 60 एंड 72 इज 1,32,000 बराबर. तो हमें रेंट मिल गया 72 एंड 60. तो अभी वो लिख लेते हैं रेंट हम वर्किंग नोट नंबर 4 बोल के. वर्किंग नोट नंबर 4 में 60,000 एंड 72,000. तो अभी हमारा नेक्स्ट क्या है आफ्टर रेंट, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी चार्जर 21,000. जो कुछ नहीं दिया उसको फिक्स्ड टाइम रेशो में करना है. इलेक्ट्रिसिटी, इसका एडजस्टमेंट कुछ नहीं है और सेल से भी रिलेटेड नहीं है तो फिक्स्ड है. तो यहाँ लिखेंगे टाइम.
How much is the amount? 10,500, 21,000 है, डिवाइड करेंगे इक्वली तो 10,500 आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, है तो कंपनी एक्सपेंस है 56,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमेशा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डायरेक्टर फी, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट, ये सब क्वेश्चन में नॉर्मली ये रहता है हर एक क्वेश्चन में। और इसको किधर लिखना है सोचना नहीं है, पोस्ट में लिखना है 56,000, पोस्ट में लिखना है 56,000। फिर बैड डेट्स है हमारे पास 16,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या देखते हैं, एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो सेल्स रेशो, बैड डेट्स 16,000, इज देयर एनी एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स? बैड डेट्स के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 16,000 को सेल्स रेशो में डिवाइड करो। 16,000 को सेल्स रेशो में डिवाइड किया, हमें मिला 6,000 और 10,000, 6,000 एंड 10,000। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है कमीशन टू सेलिंग एजेंट 80,000, ये भी तो सेल्स रेशियो विदाउट थिंकिंग, बस कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, नेम से पता चलता है। टू कमीशन, सॉरी, टू बाई वर्टिकल फॉर्मेट में टू बाई कुछ नहीं आता, कमीशन टू सेलिंग एजेंट 80,000 को डिवाइड किया, 80,000 को सेल्स रेशो में, तो 30 और 50 आना चाहिए ना, 30,000 एंड 50,000। फिर इसके बाद ऑडिट फीस, कुछ नहीं बोला तो टाइम रेशो, कुछ नहीं बोला तो टाइम रेशो, 30,000 को टाइम रेशो में डिवाइड करो। ऑडिट फीस टाइम, टाइम रेशो, 30,000 को कैसे डिवाइड करेंगे, 15,000 एंड 15,000। फिर इसके बाद ऑडिट फीस के बाद हमारे पास क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट 15,000। डिबेंचर इंटरेस्ट किधर आता है, डिबेंचर इंटरेस्ट सोचने की भी बात नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट बिकॉज डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी, डिबेंचर इंटरेस्ट विल कम इन द पोस्ट पीरियड, कंपनीज पीरियड। तो डिबेंचर इंटरेस्ट होने के बाद इंटरेस्ट टू वेंडर, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 21,000। हमारे नेक्स्ट वाले वर्किंग नोट में आ गए फिफ्थ वन, इंटरेस्ट टू वेंडर 21,000। ये इंटरेस्ट कब पे किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड वी पे द इंटरेस्ट, 31 अक्टूबर को पे किया, पर पे करना चाहिए था 1 अप्रैल को, पर हमने कब पे किया, अप्रैल मई, अप्रैल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को भी गिनना पड़ेगा बिकॉज हमने 31 अक्टूबर को पे किया है कंसिडरेशन। तो अक्टूबर तक जितने भी मंथ्स हैं हमें अप्रैल को पे करना चाहिए था, पर हमने डिले पे किया। तो कितने मंथ्स होते हैं, प्री में कितने मंथ्स है, प्री में इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड पोस्ट में कितने मंथ्स है, पोस्ट में इट इज 1 मंथ। वेरी गुड। तो हमारा रेशो क्या हो जाता है, प्री एंड पोस्ट जब हम करते हैं तो प्री में इट इज 6 मंथ एंड पोस्ट में इट इज 1 मंथ। तो हमारा रेशो हो जाता है 6:1। तो अभी हम क्या करेंगे, 21,000 को इंटू 6 डिवाइड बाई 7 डिवाइड करेंगे एंड इधर भी 21,000 को, दैट इज टोटल जो है इंटरेस्ट, 1 डिवाइड बाई 7 कितना होता है, अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करेंगे। तो हाउ मच इज इट कमिंग इंटरेस्ट ऑन, कितना आ रहा है हमारा इंटरेस्ट, कितना आ रहा है 18,000। वेरी गुड। एंड बचा कितना, 3,000 इन द पोस्ट पीरियड। सो वर्किंग नोट नंबर, हम लोग जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट टू वेंडर, वर्किंग नोट 5,
हमें कितना अमाउंट मिला, 18,000 एंड 3,000। इसके बाद हमारे पास क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट सेलिंग एक्सपेंस 1,26,000, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 1,26,000। सेल्स रेशो में देखो कितना आ रहा है, सेलिंग एक्सपेंस नेम से पता चलता है सेल्स रेशो, तो 1,26,000 को 47,250 आता है। यस इट इज सेल्स। अच्छा कमीशन और सेल्स मैंने नहीं लिखा, लिखा है ना, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, एंड दिस वन इज सेलिंग एक्सपेंस, इधर कितना रहेगा, 78,750। सेलिंग एजेंट का अमाउंट इज 80,000, 80,000 which we have already done. Say and the sales ratio is 3:5, सेल्स रेशियो 3:1 नहीं है, सेल्स रेशियो है 3:5। सेलिंग एक्सपेंस के बाद क्या है हमारे पास, लास्ट वन डेप्रीसिएशन। तो लास्ट वन लेट अस डू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में अगर हम एडजस्टमेंट रीड करें तो डेप्रीसिएशन में देयर इज 3,000 जो असेट इंक्लूड्स, डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स ₹3,000 फॉर असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो डेप्रीसिएशन में पोस्ट assets acquired in post period कितना है, assets acquired in post period, asset acquired in post period का depreciation क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है कितना है वो 3,000, और रिमेनिंग डेप्रीसिएशन तो पूरे साल, जो असेट पूरे साल है उसका है, रिमेनिंग डेप्रीसिएशन इज फॉर द फुल ईयर। तो वो कैसे करना है, डेप्रीसिएशन हमेशा टाइम रेशो में निकालते हैं, टाइम रेशो, और कितना अमाउंट है 48,000 माइनस 3,000, तो इट इज 45,000 डिवाइड इन द टाइम रेशो, टाइम रेशो में डिवाइड करो 45,000 कितना आएगा 22,500 एंड 22,500 पूरा ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस मिलेगा, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस ऐड करो कितना होता है 50,000, 12,000, 9,000, 30, 94, कितना आ रहा है 4,04,000। ओ सॉरी ये गलत जगह पे आ गया, ऐड करने पे आता है 4,04,750 एंड ये पोस्ट पीरियड का आता है 7,27,250। अब हम लोग देखते हैं कौन सा साइड हैवी है, डेबिट क्या क्रेडिट, दोनों में वी कैन सी, दोनों में वी कैन सी दैट द इनकम, डेबिट क्रेडिट तो इधर कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड तो इधर कुछ है ही नहीं, हमें देखना है टोटल इनकम ज़्यादा है या टोटल एक्सपेंस ज़्यादा है। टोटल इनकम 6 लाख प्री पीरियड का, टोटल इनकम 6 लाख और टोटल एक्सपेंस 4,04,750, तो इनकम ज़्यादा है तो इट्स अ कैपिटल रिजर्व, इनकम ज़्यादा है तो इट्स अ कैपिटल रिजर्व। कितना कैपिटल रिजर्व है 1,65,250। सेम वे पोस्ट पीरियड का जो प्रॉफिट है उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे। 10 लाख का इनकम है, 7,27,250 का एक्सपेंस है, इनकम इज अगेन मोर तो इट विल बी 2,72,750, 2,72,750, ये भी हो गया।
Now we can cross check our answer if net profit is given in the question. Net profit कितना है? 4,38,000, 4,38,000. तो ज़रा ये दोनों अमाउंट को ऐड करो, वही अमाउंट मिलता है 1,65,250 and 2,72,750. You will get 4,38,000. 1,65,250 and 2,72,750. It is 4,38,000. With this sum is done. And thank you everyone. Thank you everyone.